All right, the next one says Qaddafi Stadium, a Karachi fan's thoughts. By the way, it's not about cricket. Dear Junaid Bhai, okay, I know you hate formalities, but let me have this one fan moment. No, I don't hate formalities. यार दिल से लिखा करें. I recently watched your Gaddafi Libya dictator video, and as someone from Karachi who grew up watching cricket, I've always heard the name Qaddafi Stadium without ever questioning it. अच्छा उर्दू में कज़ाफ़ी बोलते हैं, इंग्लिश में गद्दाफ़ी कहते हैं. It just felt like a random label until PSL and your video made me curious enough to dig a little deeper. Turns out it is named after the Libyan dictator Muammar Gaddafi. That hit me like, wait, what? Every country I have seen usually name their stadiums after local legends, cities, or cultural icons. For example, India's Eden Gardens is tied to Kolkata's colonial past but now often hosts even under local cricketing names. Australia's MCG is proudly Melbourne. South Africa's Wanderers is rooted in Johannesburg. Even our neighbor recently named Delhi's Feroz Shah Kotla to Arun Jaitley Stadium to reflect a more national or political sentiment. But in Pakistan, our largest stadium in our cultural heartbeat, Lahore, is named after someone who wasn't even from here and not exactly remembered fondly. Globally, Gaddafi's reputation is more of a cautionary tale than a legacy to honor. So here's me just wondering, why haven't we renamed it? Stadiums names do change over time, even in countries with deeper heritage structures. It's not like Gaddafi's ideology or legacy is part of our identity. So what's stopping us? Sorry if this email feels like a jumble of random thoughts. I just felt like sharing it with someone who actually made me care about stadium names and the stories behind them. Thank you for sparking curiosity. You've got a fan in Karachi who now annoys friends with stadium trivia. I also like to be Mr. Facts. तो कहीं भी हम होते हैं, कोई भी बात हो रही होती है, I instantly have a fact to tell. तो मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं. सो सिमिलरली जिस तरह आपको पता चला गद्दाफ़ी स्टेडियम इज़ नेम्ड आफ्टर मोहम्मद गद्दाफ़ी, मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि नेशनल स्टेडियम नेशनल बैंक स्टेडियम है, विच इज़ वाई इट वाज रीनेम्ड. बिकॉज बहुत से लोगों को नहीं पता. आई थॉट नेशनल स्टेडियम तो हमारा नेशनल स्टेडियम है, ये नेशनल बैंक स्टेडियम है. वाह, आई नेवर न्यू दिस. सो हाँ, गद्दाफ़ी स्टेडियम तो शुरू से यही था और आई न्यू ऑफ इट. और इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइक थिंग्स अराउंड यू ऑलवेज क्वेश्चन कि ये क्यों है. चाहे वो चीज़ का नाम हो, कड़ी पत्ता को कड़ी पत्ता क्यों बोलते हैं, वो तो एक पत्ता है, उसका कड़ी से क्या लेना देना. कड़ी में डलता है इसलिए कड़ी होता है. और हमने कैसे डिस्कवर किया कि इस पत्ते को, ऑफ ऑल द पत्ताज इन द वर्ल्ड, ये वाला अगर डालेंगे तो ऐसी स्मेल आएगी, ऐसी खुशबू आएगी, ऐसा तड़का आएगा, ऐसा टेस्ट आएगा. हाउ डू वी फिगर दैट आउट? इज़ इट बिकॉज के जंगलों में जब हमारे आबाओ अजदाद हांडी खोल के पकाते थे, हांडी खोल के ही पकती है, तो कोई पत्ता उड़ के यूं 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 करके उसमें गिर गया, एंड दैट डे द स्टू दैट दे वर मेकिंग टेस्टेड डिफरेंट. लाइक व्हाट द हेल, क्या फ़र्क है? ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स वी यूज, ओ ये एक्सीडेंटली गिर गया है, नाउ विल बी यूजिंग इट एंड दैट्स हाउ वी यूज इट. आई मीन इट कुड बी वन ऑफ द थियरीज. सो ऑलवेज क्वेश्चन थिंग्स. सो अभी इस वक्त आप अपने रूम में हो ना, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट लुक अराउंड. एवरीथिंग दैट्स देयर, somebody is making money off of it. चाहे ये माइक का ये फोम हो, कोई ना कोई बना रहा है. कहाँ बन रहा है मुझे नहीं पता, मज़े का. राइट, ये स्टैंड है. अब ये एक छोटी सी चीज़ है, ये जिस पे ये ट्राईपॉड पे खड़ा है, ये उसका स्टैंड है. राइट, somebody is making it somewhere, somebody is making money off of it. So look around and question things कि ये ऐसा क्यों है. So इस तरह, and that's how you lead to a lot of questions. So कदाफ़ी के नाम पे है और क्यों है और चेंज होना चाहिए और चेंज होता रहता है, बात बिल्कुल ठीक है. लेकिन अब मसला ये, हमारे यहाँ लोकल हीरोज़ हैं ही कम. लोकल हीरोज़ कम है इसलिए हमारी बहुत सारी, अरे हमारे मिसाइल हमारे नाम पे नहीं है भाई, अफगानियों के नाम पे है जिनसे हम लड़ते हैं, जिनको गाली देते हैं, जिनको मुल्क से निकाल रहे हैं, मिसाइल उनके नाम पर है. राइट, तो लोकल हीरोज़ है ही नहीं ना यार. 70 साल का तो मुल्क है. क्योंकि उससे पहले के हीरोज़ में जाएंगे तो वो शेयर्ड हिस्ट्री हो जाती है ना. फिर वो बोलेंगे भाई ये वाला हमारा है, ये वाला हमारा है. समझ रहे हैं? तो अब 70 साल में कुछ बना ही नहीं है. अब अब्दुल सलाम है, रख के दिखा दो, वही मिसाइल घर पे आएगा. ठीक है, मलाला रख के दिखा दो, शर्मीन उबैद रख के दिखा दो. नहीं कर सकते ना भाई, नहीं कर सकते. अच्छा, फिर जो लोग वफात पा गए, सब कॉन्ट्रोवर्शियल. ठीक है, आप इसके नाम पे रखोगे तो इसको मसला है, उसके नाम को या तो मसलकी मसला हो जाएगा, या फिर यानी सेक्टेरियन, या फिर जो है पॉलिटिकल मसला हो जाएगा, या फिर सूबाई मसला हो जाएगा. राइट, तो फिर किधर जाएंगे भाई? सो
लैक ऑफ लोकल हीरोज़ है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है भाई जिस वजह से नाम रखा था वो ये था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम था दैट वाज लार्जली फंडेड बाय लिबिया। तो लिबिया का बहुत बड़ा हाथ था। एंड यू नो जो आपने वो में जिस वीडियो का आप हवाला दे रहे हैं, जो एक्सप्लेनर मैंने बनाया था गद्दाफ़ी की ज़िंदगी पे, उसमें एक मैंने बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दी थी कि गद्दाफ़ी के पास एक स्क्वाड होता था लेडी बॉडीगार्ड्स का और वही लेके घूमता था, तो वो वाली डिटेल मिस हो गई थी। खैर, तो चूँकि उसका बहुत बड़ा हाथ था, सो दिस वॉज आवर वे टू एक्नॉलेज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। और इसी तरह इस्लामाबाद की जो फैसल मस्जिद है वो शाह फैसल के नाम पर है। सो व्हेन भुट्टो वाज ट्राइंग टू यूनाइट एंड क्रिएट अ मुस्लिम नेटो, और जो OIC कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उसी के अराउंड ये सारी चीज़ों के नाम रखे गए थे। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता वी ऑल सीन कि उन सब के साथ क्या हुआ। भुट्टो वॉज हैंग्ड, गद्दाफ़ी वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, शाह फैसल वॉज मर्डर्ड, एंड अनवर सादात वॉज देयर। हाँ, अनवर सादात वॉज देयर। अनवर सादात गॉट शॉट, या उससे पहले जो था, आई थिंक अनवर सादात गॉट शॉट। तो या सबके साथ यही हुआ है। अनवर सादात ऑफ इजिप्ट। सो या तो ये एक ये है। अब ये कि कज़ाफ़ी भी नहीं है इस दुनिया में, और हो गया 50 साल, रख लिया ना नाम, अब नाम इट्स अबाउट टाइम वी कैन चेंज द नेम। मगर फिर उससे ये भी होता है ना एहसान फरामोशी। लिबिया से शायद अभी हमारे उस तरह के स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं हो, हल्के फुल्के हों। अब ज़ाहिर है न्यू वर्ल्ड न्यू मी, यू नो, न्यू ईयर न्यू मी जिस तरह होता है, न्यू डिक्टेटर न्यू मी। मगर फिर वो एक ये भी होता है कि एहसान फरामोशी ना ज़ाहिर हो कि यार ये हमारे, अब देखो एटॉमिक पावर की वजह से ही तो आज हम इराक़ और लिबिया नहीं बने हुए ना, यही तो वजह है कि लोग फिर ज़रा सोच समझ के आते हैं। तो फिर ये शायद एक वजह हो। बाकी आपकी ये बात सही है कि ही इज़ नॉट लॉडेड पॉजिटिवली, बट देन दैट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्टिव थिंग। आई एम नॉट डिनाइंग कि उसने जुल्म नहीं ढाए थे, हर डिक्टेटर की बुनियाद ही जुल्म पे होती है। हाउएवर मुझे देखना, मतलब मैं इस तरह देखता हूँ। अब जैसे ट्रम्प को लोग बहुत गाली देते हैं, मैं कहता हूँ ट्रम्प अपने मुल्क के लिए तो अच्छा है भाई, वो अपने मुल्क के लिए तो बेहतर सोचता है ना। अब एट द कॉस्ट ऑफ वॉट, वो एक अलग चीज़ है, बट यार नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होता है। ये हमारे टीचर ने मुझे पहले दिन इंटरनेशनल रिलेशंस में समझाया था कि भाई नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें खल्ली वल्ली। ओके, सो और दूसरी चीज़ ये कि फिर हमारे यहाँ सिंपैथी भी तो ज़्यादा है ना। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, उसके जुल्म से तम नहीं सोचेंगे। सद्दाम की एडिट्स बनती हैं भाई टिकटॉक पे, एडिट्स बनती हैं। मतलब उस आदमी के अगर जुल्म आप सुनने बैठो तो क्या क्या सोचोगे। और फिर उसके भी उसामा बिन लादेन भी, जब आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद बोलेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, तो फिर क्या ही पीछे बच जाता है। फिर आप दुनिया को क्या इमेज दिखाओगे। आप बोल रहे हो कि जी हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और फिर आप उन्हीं को अपलॉड भी करते हो, उनको आप लकब भी देते हो, अलकाब भी देते हो। एंड ऑफ कोर्स या फिर दुनिया ये भी पॉइंट आउट कर सकती है कि यार दिस स्टेडियम इज़ नेम्ड आफ्टर अ डिक्टेटर। और कौन सा क्रिकेट का स्टेडियम है दुनिया में जो किसी डिक्टेटर के नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एनीवे, खैर अब तो ये चैनल वैसे ही इंडिया में बैन है, कुछ नहीं होता। आई एम जस्ट जोकिंग, सब देख रहे होंगे VPN लगा के। एनीवे, सो या ही डिड फंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ज़ाहिर एक सिंपैथी फैक्टर ज़रूर है उसके साथ। बट एज़ यू सेड, वक्त के साथ साथ नाम चेंज होने चाहिए। थिंग्स चेंज, टाइम्स चेंज, न्यू जनरेशन। अब इस जनरेशन को पता भी नहीं होगा मोहम्मद गद्दाफ़ी है कौन, राइट। सो यस, मगर एक बुनियादी वजह लैक ऑफ लोकल हीरोज़ है, लैक ऑफ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लोकल हीरोज़। ये एक बुनियादी मसला है, इस वजह से हमें मुश्किल होती है, तो फिर हमें बाहर से नाम इंपोर्ट करने पड़ते हैं। दुआ की जा सकती है कि हम अपने ही इतने अच्छे हीरो बनाएं। अब स्पीकिंग ऑफ हीरोज़, लैक ऑफ हीरोज़, हमारा कौन सा क्रिकेट का हीरो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है? नेम वन क्रिकेटर एक्सेप्ट इमरान खान। इमरान खान ने इस टाइम पे ले लिया रिटायरमेंट। खैर ही वॉज ऑलरेडी रिटायर्ड 5 years ago, एंड देन ही केम बैक इन टू द टीम ज़ियाउल हक के कहने पे, एंड देन वर्ल्ड कप हुआ, एंड देन ऑन द हाइएस्ट नोट ही इज़ लाइक फक इट, आई एम आउट, राइट। अदर देन हिम वी हैव सो मैनी लेजेंड्स। किसी एक लेजेंड का बताएं जिसकी इज्जत के साथ रिटायरमेंट हुई हो, निकाले ही गए बेचारे ज़्यादातर तो, राइट। तो वही ना, वसीम अकरम स्टेडियम रख सकते हैं ना, लाइक इज़ अ फकिंग लेजेंड मैन, ना बड़ा लेजेंड है यार। मतलब उस जैसा बॉलर दुनिया में ना आया है, ना ही शायद कभी आएगा। लाइक व्हाट अ प्लेजेंट क्रिकेटर टू लुक एट, लाइक ज़बरदस्त यार। आई एम सो ग्लैड आई वॉज बॉर्न इन द सेम एरा कि सचिन वर्सेस वसीम वाले हमने इतने बैटल देखे हैं शारजा स्टेडियम के, इधर उधर फलाना ढिमकाना। सो या उनके नाम पे रख सकते हैं, ज़िंदा भी हैं। मतलब
क्या ही बात हो जाएगी। खैर, बट फिर इमरान खान भी जिंदा है, राइट। उनका नाम, उनका तो इनक्लोजर का नाम नहीं लेते PSL में, सारे इनक्लोजर से वो वेव, मैक्सिकन वेव करवाते हैं या शोर करवाते हैं, इमरान खान वाला स्किप कर देते हैं। अब वो पॉलिटिकल हो जाती हैं चीज़ें तो फिर मसले होते हैं। खैर, गुड क्वेश्चन, बट लेट्स सी कि आने वाले वक्तों में चेंज होता है कि नहीं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।